સાહેબ, આપને પણ હું આવકારું છું તથા પ્રોફેસર લલિત પાંડે સર, ફોર્મર પ્રોફેસર અને ડાયરેક્ટર શ્રી JRM વિદ્યાપીઠ ઉદયપુરથી પંડિત પાંડે સાહેબ પણ આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. પાંડે સાહેબને પણ હું હૃદયના ભાવથી આવકારું છું. સાથે આ જિલ્લાના શિક્ષકો, રાજ્યના શિક્ષકો અને અન્ય મિત્રો પણ આ વેબિનારમાં જોડાઈ રહ્યા છે. અમારા જિલ્લાના બે શિક્ષક મિત્રો કેસરીશ્રી તથા સેવકભાઈ, જેઓ ખાસ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ માટે ખૂબ જ પ્રયત્નશીલ હંમેશા રહે છે, તેમને પણ હું આવકારું છું. મિત્રો, એક વખત ડોક્ટર અબ્દુલ કલામ સાહેબને કોઈકે પ્રશ્ન પૂછ્યો કે તમારા જીવન ઘડતરમાં સૌથી વધારે મહત્વનો ફાળો કોનો છે? તો ડોક્ટર અબ્દુલ કલામ સાહેબે સહેજ પણ સંકોચ કે વિના વિલંબે જણાવ્યું કે મારા જીવન ઘડતરમાં સૌથી મહત્વનો ફાળો મારી માતાનો છે. એટલે તરત જ પ્રશ્ન પૂછનારે પ્રતિ પ્રશ્ન પૂછ્યો કે આપના માતાશ્રી તો નિરક્ષર છે, છતાં આપના જીવન ઘડતરમાં એમનો ફાળો આટલો મહત્વનો કેવી રીતે? તો કલામ સાહેબે જણાવ્યું કે મને જીવ વિજ્ઞાનના સિદ્ધાંતો મારા પ્રોફેસર સાહેબે શીખવાડ્યા છે, પણ જીવન વિજ્ઞાનના સિદ્ધાંતો, નીતિ વિષયક મૂલ્ય શિક્ષણ નીતિ, મૂલ્ય નીતિ શાસ્ત્ર જો મને કોઈએ શીખવાડ્યું હોય તો તે માત્ર મારી માતાએ છે. અને આજે હું જે પણ કાંઈ છું એ મારી માતાને આભારી છે. એટલે મિત્રો, બાળકમાં જો બાળપણથી સંસ્કારનું સિંચન કરવામાં આવે, એને મૂલ્ય શીખવાડવામાં આવે, નીતિશાસ્ત્ર શીખવાડવામાં આવે, તો એ કોઈ પણ કક્ષાએ પહોંચે તો પણ એનો હંમેશા વિકાસ થાય છે. એટલું જ નહીં, એ બીજાનો પણ વિકાસ કરે છે. એટલે આજે આપણે જોઈએ તો બાળકોને શાળામાં એટલું બધું વાતાવરણ પિતા પોતાના બાળકને જીવનલક્ષી શિક્ષણ નથી આપતા, પણ માત્ર આજીવિકાલક્ષી વિદ્યા શીખવાડવામાં હંમેશા વિચારે છે. પણ એના બદલે જો બાળકોને મૂલ્ય શિક્ષણ આપવામાં આવે તો આજે આપણે જે સમાજમાં રાગ, દ્વેષ, પોતાની લીટી મોટી કરવા માટે બીજાની લીટી જે નાની કરી રહ્યા છે, એ તમામ બાબતોમાંથી સમાજ બહાર આવે. રાગ, દ્વેષ, એને પરિણામે ઉદ્ભવતા જે ભય છે એ બધામાંથી સમાજ બહાર આવે અને પાયાથી જ જો આ મૂલ્ય શિક્ષણ, સંસ્કૃતિનો સમાનાર્થી અર્થ જ કદાચ મૂલ્ય શિક્ષણ છે અને નીતિશાસ્ત્રનું શિક્ષણ છે. જો બાળકોનો પાયામાં જ આ બાબતને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે તો એ બાળક મોટો થઈને દેશનો એક સુસંસ્કૃત અને જવાબદાર નાગરિક ચોક્કસ બને. મિત્રો, આજના વેબિનારમાં અમારા ડાયેટના કલા શિક્ષણના વ્યાખ્યાતા ડોક્ટર નીલમબેને ખૂબ જહેમત ઉઠાવી છે અને આખા રાજ્યના શિક્ષક મિત્રો સુધી સંસ્કૃતિનો પરિચય કરાવવા માટે આ વેબિનાર જે આયોજિત કર્યો છે માટે હું એમને અભિનંદન આપું છું. સાથે અમે આ બીજો વેબિનાર કરી રહ્યા છીએ અને એ માટે અમારા આવા વેબિનારોનું આયોજન કરવા માટે અમારા ડાયેટના ડોક્ટર સંજયભાઈ શાહે ખૂબ જ જહેમત ઉઠાવી છે. એમનો પણ હું ખૂબ જ અભિનંદન આપું છું અને આવકારું છું. મિત્રો, ખૂબ ઓછા સમયમાં આપણે ખાસ કરીને એક્સપર્ટ્સને સાંભળવાના હોય. હું હવે પછી ડોક્ટર જોશી સાહેબને વિનંતી કરું છું કે તેઓ આ બાબતમાં આપના વિચારો રજૂ કરે. માનનીય ડોક્ટર જોશી સાહેબ, ડાયરેક્ટર શ્રી GCERT ગાંધીનગર. નમસ્તે મિત્રો. કલ્પનાબેને સરસ મજાની ભૂમિકા આપી. ડાયટ બરોડાના ટીમના સમગ્ર પ્રયાસને અભિનંદન છે, કારણ કે આ બીજો વેબિનાર પણ આમ જોઈએ તો જરા જુદા વિષય સાથે ગયો. પહેલો અને બીજો બંને જે વેબિનારના વિષયો હતા એ બંનેની પસંદગી માટે અભિનંદન આપું. એને સરસ મજાની ભૂમિકા આપી જ છે એટલે વિષયની કહેવાનું નથી. અહીંયા વર્કશોપ પણ ચાલે છે, પરંતુ જે સંસ્કૃતિનો એક પાસો મૂલ્ય લઈને વાત કરી એવું જે છે કલા, સાહિત્ય, કલાની વાત કરી છે, ચિત્ર, સંગીત, નૃત્ય અને સાહિત્ય એ જે સમાજનું પ્રતિબિંબ છે. એટલે લિટરેચર માટે જે પૂરતું નથી, પરંતુ એક છે કે રિફ્લેક્શન ઓફ સોસાયટી,
એ તે સમાજ છે એનું પ્રતિબિંબ એમાં પડતું હોય છે. પણ જ્યારે શિલ્પની, સંગીતની, ચિત્રણીની વાત કરીએ છીએ ત્યારે એ સમાજના ઉત્તમ લોકોએ જે સર્જનાત્મક હોય છે એવા લોકોએ જે કર્યું છે એને આપણે આજ સુધી સાચવતા આવ્યા છીએ અને એના આધારે જે તે સમાજનું જે તે યુગનું આપણે મૂલ્યાંકન કરીએ છીએ. અને એ રીતે આપણે આપણી જે સાંસ્કૃતિક ધરોહર છે એ ધરોહરને આગળ વધારવા માટે એ ઉપયોગી થાય છે. શાળા શિક્ષણની અંદર આજ જેને આપણે ધરોહર કહીએ છીએ, જે કલાઓ છે, જે સાહિત્ય છે, એ બધું જ આપણે આવતી પેઢીને આપણે આપીએ છીએ ને એમાંથી નવાની અપેક્ષા રાખીએ છીએ. તો મારા ખ્યાલથી એક સરસ પ્રયાસ આજે જે કર્યો છે ને CCRT માંથી પણ ડાયરેક્ટર ડોક્ટર ચેતન જોડાવાના છે, તો સૌને હું આવકારું છું, બધા જ વક્તાઓને આવકારું છું અને બધા જ પાર્ટિસિપન્ટને પણ અભિનંદન આપું છું. આ વિષય પર આપણે જેટલું ખેડાણ કરીએ એટલું ઓછું છે. શિક્ષણનું માધ્યમ આપણે અત્યારે બહુ જે ઝઘડાઓ કરે છે હિન્દી માધ્યમ ને ગુજરાતી માધ્યમ ને ઇંગ્લિશ માધ્યમ એમ વાત નથી. શિક્ષણનું માધ્યમ તો કલા છે અને કલાના માધ્યમથી શિક્ષણ છે એ પ્રાપ્ત કરવાનું હોય છે એવી આપણે વારંવાર વાત કરીએ છીએ. ત્યારે આ કલાના વારસાને હસ્તાંતરિત કરવા માટે આપણું ભૂતકાળ ભવ્ય જે છે એની વાત વારંવાર કરીએ છીએ, પરંતુ એના વિશે સારી રીતે જાણીએ, સમજીએ. એમાં અત્યારે જે વસ્તુની વાત આપણે કરીએ વિષયોની ઇન્ટિગ્રેશન, તો એ કલા કોઈ સર્જન થતું હોય, કોઈ શિલ્પ તમે જુઓ ત્યારે એમાં ઘણી વિજ્ઞાન કેટલી વસ્તુઓ છે, ભૌતિક વાતો કેટલું બારીકાઈથી જ્યારે આવી પણ એન્જિનિયરિંગ કોલેજ આ દેશમાં નહીં હોય એ વખતે જે રીતે એની અત્યારે કોતરણી કામ, એના માપ ને બધું તમે જુઓ, એનું વિજ્ઞાન જુઓ કે હૈદરાબાદમાં તમે નીચે તાળી પાડો ને ઉપર કિલ્લામાં સંભળાય, ચોક્કસ જગ્યાએ સંભળાય. આ બધી જ વસ્તુ શિલ્પ સ્થાપત્યમાં પણ વિજ્ઞાન અને ગણિતનો કેવો મોટો ઉપયોગ કર્યો હશે એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. તો આપણા તો શિક્ષણનું માધ્યમ જ કલા હોય એવું ઈચ્છનીય છે. ત્યારે આવા વર્કશોપ ખૂબ પ્રસ્તુત છે અને આ સમયમાં બધું જયારે બદલાયું છે, આપણે બધું કહેતા હતા કે આપણે તો બાળકે જાતે શીખતા થવાનું છે. સેલ્ફ લર્નિંગ પર આપણે આપવો જોઈએ. જો અત્યારે એક દિશા આવીને ઉભી રહી ગઈ છે. આપણે કહેતા હતા કે હવે પછીની જે પેઢી છે, જનરેશન Z છે, એની પાસે માહિતી છે. આપણું કામ ફેસિલિટેટરનું છે. તો અત્યારે શિક્ષક સાચા અર્થમાં ફેસિલિટેટર જ બની ગયો છે કે શિક્ષક અત્યારે જે કામ કરે છે એ ભણાવવાનું નહીં પરંતુ ભણતા કરવા માટેનો જ પ્રયાસ અત્યારે કરવો જોઈએ. કેટલીક ખાનગી શાળાઓ સતત હજુ પણ સ્પૂન ફીડિંગ કરતી હોય છે, ત્યારે એને બદલે એને આ જે એવો તક છે, આ જે એવો સમયગાળો છે કે જેમાં બાળકને જાતે કરવું જ પડે એવા પ્રકારની કરી શકે એવી પ્રવૃત્તિઓ આપણે આપવી જોઈએ. અને મને એમ લાગે છે કે જે કોન્ફિડન્સ વધારનારી પ્રવૃત્તિ છે એ તો ખરેખર આ ચિત્ર, સંગીત, નૃત્ય એ જ પ્રવૃત્તિઓ છે. વધારે બાળકને કોન્ફિડન્સ વધારે આનંદ આપે. તો આના મારફતે આ માધ્યમ બનાવીને આપણે આગળ કેવી રીતે જઈ શકીએ એવા વિષયો પર પણ આગળના દિવસોમાં ચિંતન થાય એ અતિ આવશ્યક છે. અને પુનઃ આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું અને આયોજન માટે આભાર વ્યક્ત કરું છું. थैंक यू. सभी को नमस्कार. उपस्थित यहाँ पे सभी जितने भी हमारे संगीत प्रेमी, कला प्रेमी, कल्चरल प्रेमी सभी को मेरा नमस्कार, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ. उपस्थित उद्बोधन में प्राचार्य मैडम हमेशा जो प्रेरणा रूप बनी है उनके लिए भी मेरा आभार व्यक्त करती हूँ. हमारे शिक्षा के हीरो, जो राज्य के हीरो हैं, ऐसे हमारे जोशी सर, डायरेक्टर सर हमेशा उत्साह बढ़ाते रहे हैं और कला प्रेमी है, इसके लिए हमेशा उन कहीं भी जाएंगे तो हम लोगों को आके यही बताएंगे कि कैसे क्या करना है, कुछ भी हो. क्योंकि यही माना जाता है कि कोई भी संस्था ईंटों से नहीं बनती, दीवार से नहीं बनती, वहाँ के कर्मचारियों से बनती है. और सर का हमेशा यही प्रयास रहा है कि उनके सभी कर्मचारी कुछ इनोवेटिव करें और उनकी प्रेरणा से ही कुछ ना कुछ नया सोचने का आता आइडिया और हम आपके सामने प्रस्तुत करने को मजबूर हो जाते हैं.
और सभी पार्टिसिपेंट्स जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जितने भी, सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और अब आगे का काम चालू करते हैं। कला जो है हर एक व्यक्ति में होता है, कला पृथ्वी के कण कण में है, कला ब्रह्मांड में है। संस्कृति वहाँ की अच्छी होगी जहाँ पे कुछ संस्कार अच्छे हों, क्योंकि संस्कार जो है बिहेवियर में दिखता है और वही व्यवहार बनता है। तो सबसे पहले यही जरूरी है कि हमें कैसा संस्कार देना चाहिए बच्चों को, और टीचर से बढ़ के कोई नहीं है। यहाँ पे हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वक्ताओं में, डायरेक्टर साहब का मैं पुनः आभार व्यक्त करती हूँ, कल्पना मैडम का आभार व्यक्त करती हूँ। और आगे का प्रस्तुतिकरण हम चालू करने जा रहे हैं सर, आपके आशीर्वाद से। तो आगे जो है सभी हमारे वक्ता जो हैं उनका परिचय देना चाहूँगी। तो CCRT से डॉक्टर चेतन सर, और डिप्टी डायरेक्टर CCRT उदयपुर से, JRN विद्यापीठ उदयपुर राजस्थान से, और जो संस्कृति के विद्वान हैं वो प्रोफेसर और डायरेक्टर भी रह चुके हैं, डॉक्टर ललित पांडे सर। हमारे साथ जुड़े हैं श्री सेवक भाई और श्री केसरी भाई, राष्ट्रीय और राज्य अवार्ड विजेता भी हैं और कला प्रेमी है, और बहुत सारा सृजनात्मक उनका अनुभव हमें जानना जरूरी है कि उनके स्कूलों में संस्कृति के लिए क्या किया है, वर्गखंड के अंदर विषय वस्तु को कल्चर के साथ कैसे जोड़ के बच्चों के सामने आए हैं, और उन्हें बच्चों में क्या परिवर्तन देखा है, उनका अनुभव शेयर करेंगे। और आगे आगे रिसोर्स रूम का जो बनाया है, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारा भारत देश ही विविधता में एकता का देश है। यहाँ पर विविध धर्म, विविध जाति, त्योहार, और सबका अलग अलग कल्चर है, रीति रिवाज है, साहित्य है, संस्कृति है, अपना अपना अलग अलग। विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जो संस्कृति की वजह से पहचाना जाता है। हमारे यहाँ ही वेद है, हमारे यहाँ पुराण है, उपनिषद है, महाभारत रामायण जैसे ग्रंथ हैं। तो इसे जो रिसर्च हो रहे हैं, आज बाहर भी रिसर्च हो रहा है। एक हाल में ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुआ, उसमें ये देखा गया कि लगभग आज तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन पिछले 70 ईयर्स से रिसर्च हो रहा है। वहाँ पे उन्होंने जितने भी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे उनको लिया गया, उनसे पूछा गया, तो जो अभिप्राय मिला या जो माहिती मिली उसमें से ये देखा गया कि बहुत 2-3 लोग तो प्रेसिडेंट बने अमेरिका के, और बहुत से लोग उसमें से आर्टिस्ट भी हुए, बहुत से लोग उसमें से बहुत अच्छी पोस्ट में गए, और लेकिन कुछ लोग जेल में भी गए। कुछ लोगों को देखा कि कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ भी कारण आया। लेकिन जो कॉमन बात थी, एक ही बात थी सब में। जब देखा गया कि कौन सा ऐसा क्राइटेरिया आया, तो सब में यही पाया गया कि सबके पास ना तो पैसे का कोई खुशी है, ना तो पद की कोई खुशी है। खुश वही है, हैप्पीनेस उसमें ही है जिसने अपने रिश्ते को संभाला है, जिसने कल्चर को समझा है। तो यही उसमें कारण आया है कि हमेशा अपने रिश्ते को समझे, कल्चर को समझे, अपनी संस्था को समझे, अपने स्टूडेंट को समझे, और अपने जो वैल्यूज हैं, जो मूल्य हैं, उनको समझ के तालीमार्थियों के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में हम जितना भी उनको देना चाहे वो कम है। जितना ग्रहण कर सके उतना बहुत कम है, जितना भी दे सके। ब्रह्मांड पूरा भरा हुआ है, विश्व पूरा हमारा आदरणीय है, और इनके सबसे आदरणीय हमारे शिक्षक मित्र हैं, क्योंकि उनके साथ में ही सब बच्चे फलते फूलते हैं। बच्चे तो क्या होते हैं, कोरा कागज जैसे है। तो कलाकार तो हर व्यक्ति, हर शिक्षक कलाकार है, क्योंकि वो कोरा कागज में जो आकार बनाएगा वही बच्चे का आकार बनेगा। तो सबसे पहले बात ये है कि टीचर को बच्चों के प्रति कैसा होना चाहिए। आगे मैं ले चलती हूँ सर के पास, डॉक्टर ललित सर। हेलो, आप सुन पा रहे हैं सर? हाँ, ईमेल सर। हेलो हेलो मैडम। जी जी, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जी, सुन पा रहे हैं जी। मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगी कल्चर के विषय में, संस्कृति के विषय में आपका क्या अभिप्राय है सर? हेलो 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 सर, आप सुन पा रहे हैं? हाँ है, थोड़ी और बसी फोन पे। तब तक सर जुड़ रहे, तब तक मैं मेरे रिसोर्स रूम के बारे में बात कर दूं।
जो हेलो हेलो सर। हेलो हेलो सर। सबसे पहले मैं बड़ौदा के बारे में ही बात कर लेती हूँ कि अपने घर से ही शुरुआत होती है। मैं बहुत अच्छे सिटी बड़ौदा सिटी में रह रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत सिटी है। उसके बीचों बीच हमारा जिला शिक्षण तालीम भवन कारेली बाग है। और सभी मित्रों को मेरी गुजारिश है कि एक बार बड़ौदा की मुलाकात जरूर लें और बड़ौदा आए तो हमारा रिसोर्स सेंटर कल्चर का जरूर देखें। हमारे यहाँ बहुत लेक्चरर्स अदर डायरेक्ट के भी लेक्चरर्स आए, दूसरे राज्य से भी आए, सुपर क्लास अधिकारी भी आए दूसरे राज्यों से भी। अपने यहाँ के एमएस यूनिवर्सिटी हमारे नजदीक में है। जब भी वहाँ तालीम होती, कोई ट्रेनिंग रखते हैं तो हमारे कल्चर और रिसोर्स रूम का मुलाकात लेने जरूर आते हैं। राज्यों में से भी आते हैं, नेशनल लेवल से भी आते हैं। बहुत सारे डीपीएस जैसे स्कूल, उनके बच्चे, सभी बच्चे को लेके लगभग 6 से 8 वाले तो कंपलसरी वो लोग हर साल मुलाकात, हमारे बीएड के स्टूडेंट और पीटीसी के डीएलएड के स्टूडेंट, वो सबको यहाँ पे पहले फोन करेंगे, समय लेंगे। सबसे ज्यादा जरूरी तो ये मैं बताना चाहूंगी कि जो मेरे पीछे जो स्टेज दिख रहा है, उस स्टेज में हमारे तालीमार्थी खुद यहाँ पे पपेट्स को कठपुतली नृत्य और वार्ता पपेट्स के द्वारा करते हैं। खुद भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, सीखा है, इस रूम से जुड़े हुए होते हैं, वही पूरा देखभाल करते हैं और हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। लगभग हमारे पास अभी तक 500 जैसे तो स्क्रिप्ट हो गई हैं। इसमें से हमारे आर्ट्स ग्रुप के टीचर्स, जिनका मैं अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ, जो अभी जुड़े भी होंगे और सुन भी रहे होंगे, जिनकी वजह से सब हमारे स्टूडेंट और टीचर्स के बिना मैं कुछ नहीं कर पाती। हमारा सोच तो है, एक दिशा तो थी, लेकिन दिशा को स्वरूप देने के लिए लोगों की जरूरत होती है, उनके सहयोग की जरूरत होती है और बड़ों के आशीर्वाद की जरूरत होती है। इसलिए जो अनदेखी शक्ति मिली और हमने कुछ यहाँ तक पहुंची हूँ। रिसोर्स रूम लगभग 2013-14 से शुरू किया था। आज तक ये धीरे धीरे यहाँ तक पहुंचे हैं और अभी भी लग रहा है बहुत कुछ करूंगी। सबसे पहले हमने बड़ौदा जिला का शुरुआत पेंटिंग से करी थी। पेंटिंग में शुरुआत ही करी थी कि कैसे कल्चर यहाँ का है। बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स भी बनाए हमने वहाँ का पिक्चर के द्वारा कि कैसे बड़ौदा का कैसे दिखता है और छोटाउदेपुर का कैसे दिखता है, अपने एरिया से लिए। बड़ौदा के अंदर भी बहुत सभी तालुका में कुछ न कुछ विशिष्टता है। बड़ौदा की बात करूँ तो हमारा लक्ष्मी विलास पैलेस जो 700 एरिया में बसा हुआ है और यमी टेम्पल जो है वो हमारा धर्मनिरपेक्षता का दर्शन कराता है कि वहाँ पे चर्च के जैसे स्तंभ लगा तो चर्च के उसमें दरवाजा जो है तो जैन धर्म का प्रतीक बताता है, कलश जो है हिंदू धर्म का प्रतीक बताता है। तो एक एक वस्तु जिसको कला से प्रेम है, जिसको अपने धरोहर से प्रेम है, जो संस्कृति से प्रेम करता है, वो हमेशा आगे ही रहेगा, वो सभी से प्रेम करता है, क्योंकि कला एक भावना के साथ जुड़ी होती है और जो कलाकार होता है हमेशा भाव के साथ ही रहता है। रस में, साहित्य में भी देखें तो सब 9 रस होते हैं, तो अलग अलग भाव के साथ ही जुड़ा होता है। अब टीचर्स की मैं बात करूं तो किस तरह से वो जुड़ सकते हैं ऐतिहासिक प्रवृत्तियों के साथ। संगीत में 7 स्वर होते हैं, सारे गमा पधा नी। संगीत में 7 स्वरों में से भी जो 7 स्वर है तो पूरे ब्रह्मांड समाये हुए हैं उसमें। हर एक स्वर में, हर एक व्यक्ति के अंदर ये 7 स्वर है। कोई भी गीत या कोई भी वाद्य कुछ भी इससे आगे नहीं है, इन 7 स्वरों में समाया हुआ है। पूरा साहित्य, पूरा वर्ड, पूरा ब्रह्मांड, पूरी शक्ति इन स्वरों में समाया हुआ है, जो ओम की शक्ति के अंदर आता है। और मैं बात करूंगी और इसमें इसके साथ अध्यात्म भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि प्रतीकात्मक जो है अध्यात्मक और ये जो हमारा जो पुरातत्व तो जो पहले से ही बना हुआ है, विद्वानों ने बना के गए हैं, पहले जो हमारे वेद हैं वो सब कहीं ना कहीं साइंटिफिक है। आज हम उठा के देखें तो कहीं ना कहीं साइंटिफिक है। संगीत की बात कर रही थी मैं, तो संगीत की बात करूं तो हर शब्द में भाषा है, हर शब्द के अंदर जो है भाषा के अलावा अगर हमने गीत गाया तो गीत में ध्वनि में विज्ञान है और ताल बजाया तो ताल में गणित है। और समाज के बारे में अगर उसकी रचना हुई है, उसकी व्याख्या में समाज है। तो जिस जगह का, जिस एरिया का
परिवार अच्छा होगा, जो संस्था अच्छी होगी उससे संस्था से जुड़े सब अच्छे होंगे, तो बहुत अच्छा उनका परिणाम होगा और राज्य से राष्ट्र का निर्माण भी बहुत अच्छा होगा। सर मैं बात कर रही थी कल्चरल रिसोर्स सेंटर का, बड़ौदा की बहुत मैं बात कर सकती हूँ लेकिन टाइम बहुत कम है और हमें जो व्याख्यान देने आए हुए हैं हमारे विद्वान उनका सुनना है, उनसे प्रेरणा लेनी है, अभी हमें सीखना है और टीचर तो हमेशा सीखने वाला होता है और हम लोग हर रोज सीखते हुए रहते हैं। तो मैं बुलाना चाहूँगी बीच में मेरा यहाँ पे विराम देते हुए, सबसे पहले ये जो आज का वेबिनार है तो कल्चर के ऊपर ही है। कल्चर ये हमारा रिसोर्स जो बनाया हुआ है, रिसोर्सेज जो है तो एक वेबिनार पूरा 1 साल तक वेबिनार चले तो भी कम हो, क्योंकि एक वस्तु को लेके पूरा बताया जाना चाहिए डीप में। फिर भी हम अभी जो हमारे वक्ता हैं उनका लाभ लेते हुए मैं चलती हूँ। डॉक्टर ललित पांडे सर, प्लीज सर। जी सर, आप संस्कृत के बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? आपका वेलकम है सर। हेलो हेलो सर, सुन पा रहे हैं सर? ललित जी, हेलो सर, आवाज आ रही है? धन्यवाद। मैं सेवक हेलो सेवक भाई। हेलो। हाँ मैडम। हाँ हेलो। हाँ मैडम। सुन पा रहे हैं? हेलो जी, आपने क्या किया है? आप सामने आइए सर। सुन पा रहे हैं क्या ललित सर? डॉक्टर ललित सर? हेलो सर, आप दिख रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही सर आपकी। जी सर, हेलो सेवक भाई। हेलो। हाँ मैडम। आप आ जाइए, थोड़ा आप अपने अनुभव शेयर करिए प्लीज। आपने जो स्कूल में काम किया होगा कल्चर के ऊपर। जी मैडम। जी। नेशनल वेबिनार में जुड़े सब टीचर्स लोग, सर लोगों को मेरा हृदय से अभिवादन। मैं कल्चर से शुरू से ही मुझे लगाव है और कल्चर के साथ में शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं हर बार सोचता रहता हूँ कि कल्चर को लेकर मैं एजुकेशन में किस तरह से जुड़ूं और कोई इकाई हो या कुछ भी हो तो किस तरह से बहुत ही इफेक्टिव बना सकूं। इसके लिए किसी की भी जरूरत तो पड़ती है। तो मैडम ने जैसे बताया वैसे मैं 2013 से ही हमारा जो बड़ौदा में डायट में जो रिसर्च रूम, कल्चर रिसर्च रूम बना है, वहाँ से जुड़ा हुआ हूँ और वहाँ से कई सारी चीजें हमने सीखी है मैंने, जैसे कि फिंगर पपेट्स, हैंड वगैरह वगैरह, और ड्रामा है, कुछ नृत्य है, संगीत है, आर्ट है, बहुत कुछ मैंने सीखा है। और वो सीखने के बाद मैं हमारे स्कूल में बच्चे लोगों को बताता भी हूँ, सिखाता हूँ और अप्लाई भी करता हूँ। तो लास्ट में मैंने बच्चे लोगों को हमारे यहाँ रमत गमत अधिकारी द्वारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो कंपटीशन रखा जाता है उसमें बच्चे लोगों को मैंने पार्टिसिपेट करवाया और लोक नृत्य और रास, वो 2 कंपटीशन में मेरे बच्चे कंपटीशन में गए थे। तो उसमें पिछले 4 साल से हमारे बच्चे फर्स्ट प्राइज लेकर आते हैं डिस्ट्रिक्ट में, और जैसे बच्चे फर्स्ट प्राइज में आते हैं तो हर एक बच्चे को 1000 रुपीज इनाम भी मिलता है। तो पिछले साल मैंने जो लोक नृत्य किया था, बच्चे लोगों को सिखाया था, वो पहले मैंने वीडियो देखा, वो हमारे सापुतारा जो डांग डिस्ट्रिक्ट डांग पड़ता है, सापुतारा की ओर का वो कल्चर का एक नृत्य था। होली के वक्त वो लोग गा रहे थे, जैसे कि गीत था उन लोगों को और साथ में डांस करे, तो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने वो चॉइस किया। बच्चे लोगों को भी बताया कि चलो हम ये नृत्य करते हैं। तो उसमें कुछ ऐसा था, गाना भी साथ में होली के त्योहार का वो था, तो उसमें गा रहे थे कुछ ऐसा, होली बाई हो नाचूला आनाहाव आमाला नाचवी दे, हो आमाला नाचवी दे। कहने का मतलब वहाँ पे जो लोकल बोली है वो डांगी लोग बोलते हैं कि होली बाई को गिनती करते हैं कि हम लोग आपके वहाँ नाचने आए हैं तो हमें नचाओ। तो ये लोक नृत्य
नृत्य हमारा डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट प्राइज आया। और फिर बच्चे लोगों को जैसे कि 10 बजे में पहले बुला लेता था बच्चे लोगों को प्रैक्टिस के लिए, तो साथ में दूसरे बच्चे भी आ जाते थे। तो क्या हुआ कि दूसरे बच्चे भी ये गाना फिर पूरे साल गाने लगे और हमारे स्कूल में मतलब कि उन लोगों को अच्छा लगने लगा, पॉपुलर हो गया। तो मैंने सोचा कि इस गाने को मैं एजुकेशन में किस तरह से लूं, तो मैंने सोचा चलो मैथ्स में कुछ उसको डाल देते हैं, मैथ्स के साथ में जोड़ता हूँ उसे। तो मैंने क्या किया कि एक त्रिभुज लिया, त्रिभुज, और त्रिभुज के साथ मैंने ये गाना, त्रिभुज के साथ मैंने ये गाना अलग से उसी राग में लिख दिया, जैसे कि ऐसे अलग अलग त्रिभुज। और इस तरह से गाना मैंने बनाया कि चालो बाळको आज सो आपणे त्रिकोण ने याद करिए, ओ त्रिकोण ने याद करिए। तो क्या है कि उसमें जो डांग का जो नृत्य था उसमें उन लोगों ने लोकल बाम्बू से कुछ पावा भी बनाया था और बजा था। बच्चे लोगों ने मुझे क्या बताया कि सर उसमें तो पावा भी बज रहा था। तो बहुत ही अच्छी तरह से लग रहा था। तो सर आप भी पावा बजाए। तो वहाँ का बाम्बू तो मुझे नहीं मिला, लेकिन मैंने वो जो पाइप है, आप दिख रहे होंगे कि वो पानी के लिए पाइप हम रखते हैं अंदर पीवीसी की, वो डायग्राम भी आप देख सकते हैं। तो उससे मैंने पावा बना लिया और उसमें साथ में मैंने बजाने की कोशिश की और गाना जैसे बजा वैसे पावा बजाने का मैंने ट्राई किया। मैं एक बार बजा के बताता हूँ। तो इस तरह से मैंने ये त्रिभुज का गाना पूरा बना लिया और त्रिभुज की पूरी डिटेल उसमें इस गाने में मैंने डाल दी, जैसे कि समबाजु त्रिकोण, विषम बाजु त्रिकोण, त्रिभुज। तो इसी तरह से पूरा गाना मैंने ये कर दिया। उसमें मुझे ये बेनिफिट हुआ कि जो 4 से 8 तक के स्टूडेंट हैं उन लोगों को तो त्रिभुज के बारे में कुछ न कुछ कहीं भी जगह पे पढ़ना आता है, सिलेबस में आता है। लेकिन जो छोटे बच्चे थे, छोटी छोटी हमारी लड़कियां थी, उन लोगों को मैंने अभिनय में रखा था। तो वो लोग जैसे त्रिभुज आता है, जैसे विषम बाजू त्रिभुज, सम बाजू त्रिभुज, समद्वि बाजू त्रिभुज, तो सबके हाथ में मैंने बड़े बड़े त्रिभुज लगा दिए और जैसे जैसे वो आता है वो बच्चे लोग अभिनय करके दिखाते थे। तो छोटे बच्चे लोग जो 1 से 3 स्टैंडर्ड की जो लड़कियां थी अभिनय करने वाली, उनको भी त्रिभुज के बारे में पता चल गया और बहुत ही अच्छी तरह से वो गाने के साथ सीख गए। तो इस तरह से मैंने डायरेक्ट बड़ौदा में बहुत कुछ सीखा और जैसे कि कल्पना मैडम ने भी बहुत मार्गदर्शन दिया मुझे और नीलम मैडम ने भी बहुत मार्गदर्शन दिया। और आज मैं एक चीज बताने जा रहा हूँ कि आज मैं जो आपके सामने थोड़ा कुछ जो बोल पा रहा हूँ उसमें हमारे डायरेक्टर जोशी सर की बहुत बड़ी मेहरबानी है, क्योंकि पहले मैं काम बहुत करता था, मुझे एक्सपीरियंस मिल गया। पहले काम बहुत करता था लेकिन कुछ बोल नहीं पाता था। तो जोशी सर ने मुझे एक ही बार सिर्फ मेरा ऐसा अनुभव हुआ कि मुझे बोलना चाहिए, वो तो इसकी वजह से, जोशी सर की वजह से मैं आज कुछ जो बोल पा रहा हूँ वो सर की मेहरबानी है। तो इस तरह से मैं कल्चर के साथ एजुकेशन के जोड़ता हूँ। ऐसा जैसा सब्जेक्ट हो तो उसमें ड्रामा है और पपेट्स है, इससे मैं बच्चे लोगों को पढ़ाता हूँ और बहुत ही अच्छा परिणाम मुझे मिला है। धन्यवाद। हेलो। हाँ, धन्यवाद जी, बहुत अच्छा सेवक भाई आपने अनुभव शेयर किया बच्चों के लिए। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आपसे कि जब ये सब कार्यक्रम आप कराते हैं तो बच्चों में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है आपको? हेलो। हाँ जी, फिर से बोलिए मैडम, कुछ क्वेश्चन। आप क्या परिवर्तन देखने को मिलता है जब आपने ऐसा कुछ किया? जी मैडम, वो ऐसे क्या बच्चे लोगों को ऐसे पहले से ही ड्रामा है, नृत्य है, संगीत है, वो तो ऐसे ही पहले से उन लोगों को पसंद आता है। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर गुजराती गाना वगैरह पॉपुलर हो गया तो हर बच्चे वहाँ आके स्कूल में आके भी गाते हैं और ड्रामा डांस वगैरह करना हम बुलाते हैं तो सर मुझे रखो, मैं भी डांस करूंगी। तो उससे मुझे ये बात तो तय हो गई कि बच्चे लोगों को इसके साथ कल्चर के साथ जो एजुकेशन को हम इकाई को जोड़ेंगे
तो बहुत ही अच्छा इफेक्टिव परिणाम आएगा। तो बच्चे लोगों ने, मैंने जैसे ही ट्राई किया कि बच्चे लोगों को कल्चर के साथ जुड़कर कोई भी इकाई समझाऊंगा तो बहुत इफेक्टिव होगा, तो उससे मुझे बहुत ही अच्छा परिणाम मिला। और दूसरा मुझे ये मैडम परिणाम अच्छा मिला कि जैसे मैं कॉम्पिटिशन के लिए कुछ बच्चे लोगों को बुलाता था पहले स्कूल छूटने के बाद, तो हर एक बच्चा हाजिर रहता था, प्रेजेंट था, और उससे हमारे स्कूल में का जो रेगुलर का पूरा मंथ का जो प्रेजेंट बच्चों का है वो पूरा रहता था और बहुत लगाव से पढ़ते थे, तो उससे बहुत अच्छा परिणाम मिला मुझे। जी, बहुत अच्छा आपने सबको शेयर किया और बहुत लोग ऐसे प्रेरणा भी लेंगे कि हमें भी ऐसा करना चाहिए, कुछ नया करके दिखाना चाहिए। बच्चों के साथ तभी जुड़ सकते हैं जब उनके साथ आत्मीयता हो, और आत्मीयता कब होती, जब सृजनात्मकता के लिए कुछ करें, कोई प्रवृत्ति करे इसके लिए। ओके मैडम। जी सर, नमस्कार सर। आगे सर प्लीज। वेलकम जो है अभी बहुत बुरा है, जल्दी बात नमस्कार कर सर। जी लीजिए। वेलकम। अभी ललित सर जुड़ नहीं पा रहे हैं, पता नहीं, काफी टाइम से मैं उनको बुला रही हूँ लेकिन जुड़ नहीं पा रहे सर। बहुत अच्छा हुआ आप आ गए। हेलो। जी सर। हेलो। हेलो। हाँ नीलम जी, नमस्कार। नमस्कार सर, सभी के लिए नमस्कार। जी वेलकम सर। जी चलिए बताइए। जी सर, ये हमारे सामने सबको परिचय में देना चाहूंगी, जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, डॉक्टर चेतन सर, CCIT डिप्टी डायरेक्टर। अभी हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा क्योंकि ये कल्चर संस्कृति के, मैं कहूँगी तो स्थान है ऐसे, तो बहुत कुछ जो भी हमें क्वेश्चन हो भी पूछ सकते हैं और हमें टोटल मार्गदर्शन मिल सकेगा। सर, इसके पहले मैं थोड़ा बताना चाहूँगी कि रिसोर्स सेंटर का जो हमारा उद्देश्य था, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जिले से शुरुआत करूँ, बड़ौदा जिले से, छोटाउदेपुर जिला हुआ और सभी राज्य में मैं थोड़ा विजुअलाइज भी करवाना चाहूँगी पूरे सेंटर यहाँ पे जो बनाया हुआ रिसोर्सेज का। तो यहाँ पे जो है शुरुआत किया वहाँ से, छोटाउदेपुर जिले से शुरुआत किया, तो छोटाउदेपुर का पूरा कल्चर हमने लिया कि क्या क्या उसमें बता सकते हैं, क्या क्या उसमें लेना चाहिए जो लुप्त हो रही है आज। आज सबके पास गैस है, लेकिन बच्चों को जिसके आज ऐसा भी होगा कि गाँव में तो ठीक है, लेकिन शहर के बच्चों को कभी चूल्हा देखा भी नहीं होगा किसी ने, फिल्म में देखा होगा या किसी के घर देखा होगा, तभी समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं जो लुप्त हो रही हैं या क्या प्रचलित है इसके बारे में बताना चाहा कि जो अभी जो नहीं पता है और जो अभी बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब आज के आधुनिक युग में और प्राचीन काल में क्या अंतर है, ऐसा भी हमने बीएड स्टूडेंट को भी बताया, जो बच्चे आते हैं उनको भी बताया। मैं थोड़ा बताना चाहूँगी पूरा विजुअलाइज करके। आपको शायद दिख रहा है सर? नहीं मैडम, नहीं दिख रहा है, आपकी फोटो दिख रही है मैडम। अब दिख रहा है सर क्या? नहीं मैडम। आप सब देख रहे होंगे, एक के बाद एक देख पा रहे होंगे। नहीं दिखाई दे रहा मैडम। अक्षिता पांडे लिखा है, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए तो आपको दिखेगा। हेलो, तब तक मैं बोलती जाती हूँ कि हमारा जो उद्देश्य था ये सेंटर बनाने का क्या था, कि मैं हमेशा ऐसा सोचती थी कि कुछ नया करे तो, और जो हमारे स्टूडेंट है ना, थोड़ा काम करके और प्रेजेंटेशन किया, लेकिन मॉडल बनाए, मॉडल के ऊपर प्रेजेंटेशन करें, लिखे भी उसका, कॉपी भी बनाए, फिर उसके ऊपर प्रेजेंटेशन करें, पावर पॉइंट बनाए, और कुछ नया दिखे तो अच्छा रहे। बच्चों को बहुत मजा आता है कि कुछ उसका मॉडल देखें तो पता चले कि कैसा होता है स्वरूप। कल्पना तो करते हैं, लेकिन काल्पनिक की तरह पूरा विजुअलाइज कर सके तो अच्छा। तो हमने विषय वस्तु के साथ में विविध कला को, गीत, वाद्य, नृत्य, कठपुतली नृत्य, पपेट, वो सभी जोड़ना चाहा। हमेशा यही सोचा कि कुछ नया हो जाए। तो पपेट्स के बहुत सारे, कितने सारे स्क्रिप्ट ऐसे भी हैं आजकल, जैसे कोरोना का चल रहा है, अभी तालीमार्थी छुट्टी पे है, नहीं तो वो एक बता भी सकते थे लाइव में। और अभी इसके पहले स्वच्छता के ऊपर चल रहा था, योग के ऊपर है। हमेशा कुछ ना कुछ पपेट शो के द्वारा कुछ ना कुछ वो लोग करते रहते हैं और सबको दिखाते हैं।
तो हमारे स्टूडेंट भी बहुत क्रिएटिव है जो बड़ौदा डायरेक्ट से पढ़ के जाते हैं, क्योंकि खुद ही वो लोग सब लाइक करते हैं। शिक्षण को संस्कृति से जोड़ के जीवन के साथ उनका उत्सव, पहरवेश, उनका खान पान, उनकी भाषा, उनकी रहनी करनी, वो सब भी बताने की कोशिश की है। और शिक्षकों को मैं यही विनती करूंगी कि वो सभी जो समय आए, जिस समय जो भी हो अभ्यासिक प्रवृत्ति में कल्चरल एक्टिविटी को जरूर जोड़े बच्चों को उसी समय, क्योंकि विकास साथ में ही होता है, शिक्षा और संस्कृति साथ में ही है, इसके लिए साथ में वो बताएं और आगे बढ़े। यहाँ पे बहुत सारा रखा गया है, पूरा ये देख भी सकते हैं कि पुतले के रूप में भी है, हैंड वर्क भी है। हमारे यहाँ जो बड़ौदा जिले का पूरा, बड़ौदा जिले के अंदर संखेड़ा से लेकर, और संखेड़ा जो है यहाँ पे खरादी काम के लिए प्रसिद्ध है। शायद आपको अब दिख रहा हो थोड़ा रूम का, तो खरादी का देश विदेश में यहाँ से एक्सपोर्ट होता है सर। और जो हमारे बाजू में ही रखा हुआ है, मैं बताना चाहूंगी कि है वारली पेंटिंग और पिठोरा पेंटिंग। वारली शायद आप देख पा रहे होंगे, वारली पेंटिंग और पिठोरा पेंटिंग का नमूना है। वैसे तो मैं बताना चाहूँ तो पिठोरा पेंटिंग जो आप जानते हैं आदिवासी समुदाय का पूरा, वो लोग इसकी पूजा करते हैं। मान्यता ऐसी है कि वारली पेंटिंग जो है वर्ली जाति के बनाते हैं वो लोग। वर्ली जाति के जो समुदाय के लोग हैं वो लोग चावल के आटे से उसका पेंटिंग का निर्माण करते हैं। तो सबके घरों में, उत्सवों में, शुभ प्रसंगों में वारली पेंटिंग दिखाई देता है। और जो पिठोरा पेंटिंग है तो ज्यादातर हमारे छोटा उदयपुर तरफ ज्यादा देखने को मिलता है। वो लोग क्या करते हैं कि आदिवासी जाति समुदाय के जो लोग हैं वो लोग इसकी पूजा करते हैं। इसमें ये मानते हैं कि हमारा जो घोड़ा, हाथी, इसमें बना हुआ घोड़ा है, हाथी है और कुछ हिरण है, जो भी है, और ऐसा मानते हैं कि हमारी जो समस्या का हल इसमें होता है। वो मान्यता रखते हैं कि हम जो भी मान्यता रखेंगे इसके द्वारा हमें पूरा होगा और बच्चों को, छोटे बच्चों को कभी कोई परेशानी नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। वो लोग इसलिए उसकी मान्यता रखते हैं और मानते हैं। सर मैं अभी आगे धीरे धीरे चलती जाऊंगी। रिसोर्स रूम में बहुत ज़्यादा एक के बाद एक भरा पड़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा मैं लाभ अब अपने आगंतुक मेहमानों का लेना चाहूँगी। तो ललित सर, आप सुन पा रहे हैं प्लीज़? हेलो, हेलो। जी हाँ नीलम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी सर। डॉक्टर चेतन सर प्लीज सुन रहे हैं आप? सर आप आइए, स्क्रीन पे आप आइए, प्लीज ज्वाइन होइए। हेलो सर, डॉक्टर चेतन सर। हाँ जी जी नीलम जी, आप ज्वाइन होइए सर प्लीज। सर मेरा सवाल है सर कि शिक्षा में संस्कृति का होना क्यों जरूरी है सर? सर इसमें कुछ शिक्षा में, जी हाँ, शिक्षा में संस्कृति का होना इसलिए जरूरी है क्यों शिक्षा, जिस तरह से शिक्षा हम कहते हैं, जो एक बहुत ही महान विचारक और बड़े विश्व के शिक्षाविद ने कहा कि एजुकेशन मतलब शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। तो स्वस्थ मस्तिष्क के लिए शिक्षा, स्वस्थ मस्तिष्क के लिए हमें कल्चर, पूरी तरह से कल्चरली उसको समाहित करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि शिक्षा, कल्चर के द्वारा शिक्षा किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अपनी एबिलिटी को इंक्रीज करती है, मतलब उसमें योग्यताओं का बढ़ाती है, कार्य क्षमता बढ़ाती है। लेकिन संस्कृति के बगैर उसमें संवेदनशीलता नहीं आती है। संवेदनशीलता की शिक्षा के द्वारा कोई व्यक्ति आईएएस ऑफिसर बन सकता है, लेकिन वो पूरी तरह से संवेदनशीलता उसके अंतर्गत बहुत जरूरी है आज पीरियड में। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि दो चीजें याद रखिए कि सिंपैथी और इम्पैथी,
सिंपैथी मीन सहानुभूति। आज के पीरियड में सहानुभूति वाले लोग बहुत होते हैं, लेकिन इम्पैथी वाले EMPATHY इम्पैथी वाले लोग बहुत कम होते हैं। मीन्स संवेदनशीलता। संवेदनशील, जैसे महात्मा गांधी जी, स्वामी विवेकानंद बहुत संवेदनशील थे हमारे समाज के विकास के प्रति। तो संवेदनशील गुणों को केवल हम संस्कृति के द्वारा ही उनको आत्मसात कर सकते हैं, तो उनका प्रभाव पड़ सकता है। तो संस्कृति किसी भी व्यक्ति को और अधिक उसकी कार्य क्षमता बढ़ाने में सहायक आती है। संस्कृति के द्वारा ही उस व्यक्ति विशेष के बिहेवियरल टेक्निक्स जिसको कहते हैं, उसके वर्ताव में बहुत कुछ चेंज आता है, उसके दृष्टिकोण में चेंज लाती है। और आज के पीरियड में हम सभी जानते हैं कि प्रोफेशनल स्किल्स एक व्यक्ति में, भले ही वो कोई MA D.Litt और PhD के D.Litt भी कर लिया हो, लेकिन जब तक उनमें सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, मतलब पूरी तरह से व्यवहार में नहीं है, तो व्यक्ति से कामयाब अपने कार्य क्षेत्र में नहीं बन सकता है। प्रोफेशनल स्किल्स के साथ में सॉफ्ट स्किल्स केवल और केवल हमारी सांस्कृतिक तत्वों के द्वारा ही आ सकते हैं, क्योंकि सांस्कृतिक तत्व, जैसा कि मैंने कहा, जो सांस्कृतिक मूल्य है, सांस्कृतिक तत्व है, उनको शिक्षा के बगैर, जैसे शिक्षा का हमारी आत्मा के साथ संबंध है, आत्मा का परमात्मा के साथ, जैसे संस्कृति का भी वही संबंध है जैसे आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध है। और संस्कृति को किसी स्वरूप में हम अलग नहीं कर सकते, हालांकि दोनों समाहित है। जब बच्चा मदर से सीखता है चाइल्डहुड एज से, और वो आगे भी सीखता चलता है, लेकिन मदर उसको सारी सांस्कृतिक जो एबिलिटी है उनको सिखाती है। तो सांस्कृतिक तत्वों से ही एक व्यक्ति में स्वावलंबन की भावना, सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना सभी में होती है। लेकिन संस्कृति के बगैर जितने भी हमारी मॉरल स्टोरी, जातका स्टोरी, जितने भी हमारे मॉरल स्टोरीज हैं, उनके द्वारा ही हम क्यों पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उनके द्वारा ही हमें मॉरल बूस्टिंग मिलती है, उनसे ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, और उसी से हम ऊर्जावान बनते हैं। तो संस्कृति के बगैर जैसे हमारा आत्मा विहीन शरीर हो जाता है, ऐसे ही हमारी संस्कृति के बगैर शिक्षा है। और शिक्षा के विकास के लिए देखिए 3 चीजें होती हैं शिक्षा प्रोग्रेस, शिक्षा की डेवलपमेंट, और शिक्षा का ग्रोथ हो सकती है, प्रोग्रेस हो सकती है, लेकिन शिक्षा का डेवलपमेंट पूरी तरह से संस्कृति के ऊपर डिपेंडेड है। जब तक संस्कृति पूरी तरह से उसके तत्वों के साथ, क्योंकि जैसा कि एक ही सिक्के के 2 पहलू या एक ही गाड़ी के 2 पहलू हैं, तो आज के पीरियड में आप जो काम कर रहे हैं बहुत ही मैं कहूँगा एक नोबल काम सोच रहे हैं और कर रहे हैं, जो क्योंकि आज के पीरियड में संस्कृति को ग्रीसिंग करने की जरूरत है। अगर ग्रीसिंग से, जिस तरह से एक हम अपनी गाड़ी की भी सर्विस कराते हैं, जो भी हम 2 पहिया वाहन या 4 पहिए का वाहन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी सर्विस क्यों कराते हैं? तो आज के पीरियड में टाइम पर इसी सर्विस कराना, ग्रीसिंग देना आज के पीरियड में हमारी संस्कृति को बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारे बहुत सारे तत्वों का लोप हो रहा है और उनको पुनर्जीवित करने में संस्कृति का शिक्षा में होना अति आवश्यक है। बहुत अच्छा सर, बहुत सबने सुना होगा कि संस्कृति, और ये तो कुछ और नया कुछ क्वेश्चन भी होंगे, हम लास्ट में लेंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे तो सर आगे मेरा एक सवाल और था सर कि शिक्षा में सांस्कृतिक मूल्यों का शिक्षा में होना क्यों जरूरी है? सांस्कृतिक मूल्यों में मतलब क्या होता है ऐसा, और शिक्षा में क्यों जरूरी है ये बच्चों के लिए? जी मूल्यों की जहाँ तक बात है,
निम्न आप 3-4 चीजें मतलब मैं ये कहूँगा आज के संदर्भ में सभी शिक्षकों से मेरा अनुरोध है कि जब मूल्य की बात करते हैं, देखिए बैठिए जरा गौसे पे कहिए तो। हेलो, जी सर सुन रहे हैं, जी सर। हाँ हेलो, जी सर बोलिए, कंटिन्यू सर। हाँ आ रही है आवाज? जी सर आ रही है, प्लीज प्लीज। हाँ, तो मूल्य के बगैर मूल्यों का ह्रास हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में अगेन एंड अगेन, और उनको पुनर्जीवित करना, शिक्षा में स्थापित करना। शिक्षा सशक्त तभी बन सकती है, शिक्षा एक अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर, अच्छा IAS ऑफिसर, अच्छा शिक्षक तभी बन सकता है जब उसमें हमारे समाहित होना बहुत जरूरी है। अब मूल्यों की जहाँ तक बात है, मैं 3-4 कैटेगरी अगर आप याद रखें, हमारे सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि बहुत सारे मूल्यों का वर्गीकरण है, चाहे अगर हम प्राचीन उसमें जाए, धर्म अर्थ काम मोक्ष या साम दाम दंड भेद, वो हमारे प्राचीन मूल्य हैं, उन्हीं के उपनिषदों में अलग बखान मतलब विवरण दिया गया है, उनके बारे में अलग अलग बखान किए गए हैं। लेकिन हमारे जो मूल्य हैं आज के कॉन्टेक्स्ट में, उन्हीं में से 4 चीजें याद रखेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा पूरा पिलर है ये 4। मैं ज्यादा शॉर्ट में टाइम न लेकर के, जैसे S फॉर सिंसियरिटी, सैक्रिफाइस एंड स्ट्रगल, मतलब हमारी संस्कृति का बलिदान और जूझना, और जो कर्तव्य निष्ठा है वो हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग है, जो कि आज के पीरियड में बहुत पीछे हैं। ये चीजें किसी में है, किसी में नहीं है, तो इनको पुनर्जीवित करना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज मैं कहूँगा C, S याद रखें, C भी याद रखें, C फॉर करेक्टर, और करेक्टर कॉपरेशन और क्रिएटिविटी मीन्स करेक्टर फॉर्मेशन। स्वामी विवेकानंद ने पूरे एजुकेशन का जो पिलर है वो करेक्टर फॉर्मेशन ही दिया था। अगर कोई शिक्षा चरित्र निर्माण में सहायक नहीं है तो वो शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से फेल है। तो आज के पीरियड में चरित्र निर्माण बहुत जरूरी है। किस तरह से हमारे जो चरित्र का निर्माण है वो बहुत शिक्षा के साथ साथ होना चाहिए। दूसरी बात है कॉपरेशन की भावना हर संस्थान में, हर फैमिली में, हर जो न्यूक्लियरिज्म आ रहा है, हर बच्चों में कॉपरेशन की भावना एक दूसरे के प्रति बड़ी कम है, उसको हमें जरूर पुनर्जीवित करना चाहिए। तीसरी चीज है क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। देखिए नीलम जी, करोड़ों टीचर्स हैं हमारे इंडिया में, लेकिन आप अपनी लाइफ से देखिए आप कितने टीचर्स को आज भी श्रद्धा के साथ याद रखती हैं। मुश्किल से आप 10 टीचर, 15 टीचर, 5 टीचर बड़ा उत्साहित रूप से याद करते होंगे अपने मन में। सभी टीचर्स ने आपको पढ़ाया क्लास 1 से लेकर लास्ट तक, लेकिन आप घर को आज भी टीचर्स के नाम याद करती हो क्योंकि उन्होंने आपको इफेक्टिव टीचिंग या क्रिएटिव टीचिंग के माध्यम से पढ़ाया। और क्रिएटिव टीचिंग क्या होती है, उसमें कुछ न कुछ रचनात्मकता के द्वारा, सांस्कृतिक तत्वों के द्वारा कुछ न कुछ। और तीसरी चीज में कहूँगा T याद रखें, तो T में टॉलरेंस कम हो रहा है। किसी में गुस्सा, ये साइकोलॉजिकल रिसर्च WHO की 1 सेकंड का गुस्सा 10 हमारे मिनट की एनर्जी को खा जाता है। और हमें गुस्सा कभी भी किसी भी तरह से हमें अवॉइड करना चाहिए। 99% गुस्सा हमारी एनर्जी को खाता है, हमारे कल हमें टॉलरेंस होना चाहिए। और हमें टैलेंट सभी जो लोग हैं, डिग्री सभी को मिलती है, लेकिन टैलेंट को बचाए रखना, टैलेंट प्रतिभाशाली होना बहुत जरूरी है। और इसी में
तीसरी चीज मैं कहूँगा कि हमारे अंदर अगर मुझे कोई काम नहीं आता है तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं है मैनिपुलेट करने की। हमें अपने प्रोफेशन के प्रति सत्यवादी, कर्तव्यवादी और निष्ठावान हम तभी हो सकते हैं जब हमारे अंदर आएगी। और मैं ज्यादा टाइम में लेकर के एक चौथा जो वर्ड है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो है आर को अगर आप याद रखें तो उसमें देखिए रेस्पेक्ट ईच अदर, जैसा कि मैंने कहा खत्म होती जा रही है, उसको हमें एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट देना चाहिए। हमें अपनी दूसरा चीज है रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम इंडियंस में क्या है, हमारी जो संस्कृति का जो अभिन्न अंग है, हमें अपने कर्तव्य राइट के प्रति सजग नहीं होना चाहिए। हमारी संस्कृति कहती है, आप सभी जानते हैं, कर्मण्यवाद कारस्तु मा फलेषु कदाचन, ये सत्यमेव जयते। हमें कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन आज का ज्यादातर जो परसेंटेज है वो फल की पहले अच्छा रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलेगा, कितना अगर खर्च करेंगे तो कितना पैसा मिलेगा, पहले हमें वो व्यक्ति रह जाता है। तो हमें अपने सोचना चाहिए, केवल राइट के बारे में ही नहीं होना चाहिए, रिस्पेक्ट के बारे में भी सोचना चाहिए। तीसरी चीज बड़ी इम्पोर्टेंट है आज के पीरियड में, रिलीजन हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। सभी धर्मों का योग है, जो जोड़ है वो एक ही है। गॉड इज वन एंड ऑल द पीपल आर इक्वल इन गॉड वे। हम अल्लाह की या भगवान की निगाह में सभी लोग बराबर है। उन्होंने किसी को तुम्हें ज्यादा प्यार मिलेगा, तुम्हें कम मिलेगा। तो भगवान ने हम सभी को बराबर हमें देख रहे हैं, तो हमें उनको बराबर रेस्पेक्ट देनी चाहिए हर रिलीजन के लिए। और हर रिलीजन का अपनी अपनी जगह उसका हर फिलॉसफी है, और हर रिलीजन के बारे में हमें रेस्पेक्ट देनी चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा कि वैल्यूज को ज्यादा टाइम न लेते हुए फिर उसी बात पर आता हूँ, सिंपैथी और एम्पैथी। हमें आज सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है, हमें संवेदनशीलता की आवश्यकता है। हमें संवेदनशील बनाए, न सहानुभूति होना है। जी सर, थोड़ा सा मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, इसके बाद डॉक्टर ललित सर से जुड़ना चाहूंगी। सर एक ही क्वेश्चन है शॉर्ट में, फिर आगे गेस्टी भाई तैयार रहेंगे। और सर डॉक्टर चेतन सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि लोक संस्कृति जो है, तो लोक नृत्य और क्लासिकल नृत्य में क्या अंतर है? शॉर्ट में प्लीज बताएंगे 1 मिनट में। मिनट आई विल फिनिश। आप सभी जानते हैं कि हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। 2 तरह से मोहिनी अट्टम, कथकली, भरतनाट्यम बिलोंग टू तमिलनाडु, कुचिपुड़ी बिलोंग टू आंध्र प्रदेश, और उड़ीसी डांस बिलोंग टू हमारा उड़ीसा, और मणिपुरी डांस बिलोंग टू मणिपुर। क्षत्रिय डांस 6 साल पहले संगीत नाटक अकादमी ने रिकॉग्नाइज किया, वो है हमारा असम से क्षत्रिय डांस। और कथक डांस हमारा 4 घराने और 3 स्टेट से इनिशियली बिलोंग करता है। ग्वालियर फ्रॉम मध्य प्रदेश, लखनऊ एंड बनारस फ्रॉम उत्तर प्रदेश, एंड जयपुर फ्रॉम राजस्थान। नीलम जी, ये 8 क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य हमारे 8 है। इसके अलावा जितने भी नृत्य हैं भारत में, चाहे गरबा है, चाहे डांडिया है या भंगड़ा है, जितने भी नृत्य हैं, ये मोर देन 700 कलाएं हैं। और इंडिया में ये सभी हमारी लोक कलाएं हैं। इसमें जो मेजर, प्लीज आप सभी ध्यान रखें, इसमें मेजर डिफरेंस है। मैं एक ही सेकंड बताना चाहूँगा। सारे क्लासिकल डांस हमारे एक बाउंड्री लाइन के अंदर, एक सर्किल के अंदर डांस किया जाता है। उसमें हमारा शास्त्रीय वाद्य यंत्र होगा, जरूरत है उसके बगैर उसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता। और जो ऋचाएं हैं, जो भी हमारे महाभारत या रामायण से रिलेटेड जो हमारी कथाओं के ऊपर बनाए गए हैं शास्त्रीय नृत्य, उसके
अलावा तीसरी बात कि जो भी हमारी शास्त्रीय ड्रेस वेशभूषा और नवनीत उसके बनाए गए उसके डांस मतलब शास्त्रीय डांस परफॉर्म नहीं किया जा सकता है, किया जाएगा। लेकिन कोई भी फोक डांस हमारा कोई भी फोक डांस वो उस सर्किल के बाहर भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिशनल ड्रेस आप लेकिन भांगड़ा जीन्स पहन करके भी किया जाता है। फाउंडेशन नहीं कि आपको पहनना जरूरी है, लेकिन भरतनाट्यम में या मोहिनीअट्टम में आपको शास्त्रीय जो हमारी ड्रेस है वो पहनना आवश्यक है और उन्हीं ऋचाओं पर आपको डांस करना आवश्यक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है लोक नृत्य और नृत्य। थैंक यू वेरी मच सर। फिर आपके पास वापस आती हूँ। डॉक्टर ललित सर, आप सुन पा रहे हैं? प्लीज सर, प्लीज ज्वाइन हुई प्लीज। डॉक्टर ललित सर जी। सर आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही सर। अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट करना है आपको। जी सर, आवाज आई सर? हेलो, मुझे आ रही है आपकी आवाज। जी सर प्लीज, आपका बहुत अभी थोड़ा कम टाइम है इसलिए एडजस्ट करना है। आपका नॉलेज का लाभ मिले इसके लिए सर प्लीज मेरा क्वेश्चन है कि सर आप विरासत के बारे में कुछ प्रकाश डालिए। सभी को मेरा नमस्कार और संयोजक और आयोजकों को मेरा आभार, धन्यवाद। मैं जैसा कि मेरे से पूछा गया है, विरासत जो है यह हमारे समाज का हमें कहना चाहिए एक प्राण की तरह है, एक आत्मा की तरह है। क्योंकि कोई भी देश या राष्ट्र जो है, संस्कृति जो है, वो बिना विरासत के उसका अस्तित्व जो है वो खतरे में पड़ जाता है। और प्रत्येक जनरेशन का एक कर्तव्य है कि वो अपनी विरासत का संरक्षण रखे और उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता रहे। विरासत से मतलब है हमारे पूर्वज जो भी कुछ हमारे लिए छोड़ गए हैं वो हमारी विरासत है। सामान्य रूप से हम सामान्य रूप से समझते हैं विरासत का मतलब कि हमारे महल, दुर्ग, किले, ये सब विरासत है। लेकिन विरासत का क्षेत्र जो है बड़ा विस्तृत है। यूनेस्को ने 1970 के अंदर विरासत को, हेरिटेज को उन्होंने जो परिभाषित किया था, उसमें उन्होंने जीवन के हर आयाम को ले लिया है और उसमें उन्होंने एक बड़ी सी परिभाषा दी है विरासत की। उन्होंने कहा किसी भी प्राकृतिक वस्तु में, आप सुनिए ध्यान से, किसी भी प्राकृतिक वस्तु में मानवीय हस्तक्षेप के लक्षण यदि दिखते हैं तो वह विरासत है। तो अब मैं आऊंगा विरासत के प्रकारों पर। विरासत जो है मुख्यतः एक तो मानव निर्मित है और दूसरा एक प्रकृति प्रदत्त है। एक प्रकृति ने हमको विरासत दी है और दूसरी विरासत हमने अपना स्वयं निर्माण किया है। जी सर, मैं एक क्वेश्चन जोड़ना चाहूंगी कि इसको बच्चों के साथ जो अभ्यासक्रम में है या पढ़ाई के साथ में कैसे जोड़ा जाए, कैसे इसको जोड़ सकते हैं बच्चों के लिए? नहीं, इसके लिए हम ऐसा है, जैसे हम ज्योमेट्री पढ़ाते हैं या विज्ञान पढ़ाते हैं, तो उसमें हम छात्रों को किसी भी पास के हम मॉन्यूमेंट में ले जा सकते हैं, किसी भी मंदिर में ले जा सकते हैं और उसका मेजरमेंट लेने के लिए उनसे कह सकते हैं उसका क्षेत्रफल जो है वो निकाला जाए। तो इस तरह से हम गणित से सकते हैं और उसको कैसे बनाया गया है, किस तरीके का उसमें मोर्टार पत्थरों को चिपकाने के लिए, ईंटों को बनाने के लिए यूज किया गया है, उसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है। ये सब बातें जो है अलग अलग विषयों से जुड़ी हुई हैं। जी, शिक्षा में संस्कार का होना क्यों आवश्यक है आपके दृष्टिकोण से? संस्कार हमारे प्राण हैं और भारतीय संस्कृति के अंदर संस्कारों का बड़ा महत्व है। मेरे ख्याल से विश्व के अंदर एकमात्र हमारा ही धर्म है, हमारी ही संस्कृति है जिसमें जीवन को विधिवत रूप से संस्कारों में बांटा गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे जीवन को 4 भागों में बांटा है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और इन चारों आश्रमों का जो हम निर्वहन कर सकते हैं, उनको हम जी सकते हैं, उसके लिए संस्कारों का होना आवश्यक है। पहला
16 सबसे 16 संस्कार है, गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि तक के 16 संस्कार हैं। यहाँ मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि यूरोप के अंदर पाश्चात्य संस्कृति के अंदर ये माना जाता है कि जो बच्चा पैदा होता है वो एक बायोलॉजिकल एक्सीडेंट है, वो एक जैविक प्रक्रिया है जिसके तहत जो है बच्चा पैदा होता है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने विवाह लेडीज के कंसीव से पहले एक संस्कार का निर्माण किया है, उसको कहते हैं गर्भाधान संस्कार। यह संस्कार हालांकि क्या है नहीं होता। उसके बाद दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। जब बच्चा का जब गर्भ हो जाता है पुंसवन संस्कार होता है। आर्टिकल साइंस भी ये मानती है कि 3 महीने के बाद से बच्चे के अंदर बॉडी निर्माण हो जाती है और उसकी केयरफुल रहना चाहिए। तो पुंसवन, तो इस तरीके से आप देखिए तो हमारे जीवन के अंदर इनका बड़ा महत्व है। सारे 16 संस्कारों को यहाँ कभी संभव नहीं होगा, कभी करेंगे। इसमें संस्कार जो है मैडम ये ब्रह्मचर्य का शिक्षा जो है हमारा। सर 2 मिनट आर्कियोलॉजी के बारे में बताना चाहेंगे क्या सर? आर्कियोलॉजी के बारे में सर प्लीज थोड़ा सा प्रकाश डालिए। आर्कियोलॉजी जो है ये हमारी पुरानी वस्तुओं का अध्ययन पुरातत्व के अंतर्गत खुदाई करके जो सामग्री निकालते हैं से वो आती है। लेकिन केवल खुदाई से प्राप्त सामग्री ही पुरातत्व नहीं होती है। जो पृथ्वी के ऊपर स्थित स्मारक किले हैं, ये सब मंदिर अभिलेख हैं जो पाए जाते हैं, ये सब पुरातत्व का जो है भाग होता है। और पुरातत्व का महत्व यह है कि हमारा मानव का जो इतिहास है उसमें से लिखित जो साक्ष्य है, जिसका हमको लिखित मालूम वह केवल 1% है। और इस 1% में भी हड़प्पा संस्कृति की पा नहीं सके हैं। तो इसमें साहित्यिक है और इसका अबू भाई माइक बंद। हाँ मैडम जी सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो जी हेलो एडमिन पैनल प्लीज माइक मुलाकात होती है, फिर आती हूँ लौट के। केसरी भाई आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ जी, आप कुछ प्रवृत्ति बताइए प्लीज। आप अपने वर्गखंड में क्या करवा रहे हैं संस्कृति कल्चर से जुड़ता हुआ? નમસ્કાર વડોદરામાં કલ્ચર રિસર્ચ રૂમ છે એમાં છેલ્લા 2014 થી ખૂબ સહયોગી બન્યો છું અને એ કલ્ચર રિસર્ચ રૂમ છે એને ધ્યાને લઈને મેં મારી શાળામાં બાળકોમાં જે કલ્ચર સંસ્કૃતિ છે એ સંસ્કૃતિને જોડવા માટે પ્રયત્ન કર્યો છે. આપણે જાણીએ છીએ ગુજરાતમાં ગરબા, રાસ અને લોકનૃત્ય એ આખી સંસ્કૃતિ જાળવી રાખી છે. તો મેં એવું કર્યું કે ધોરણ 6-7-8માં જે વિજ્ઞાન છે એ વિજ્ઞાનના કેટલાક તત્વોની જે સંજ્ઞાઓ છે એ સંજ્ઞાઓને સહેલાઈથી યાદ રહે એ માટે મેં એક નવો અખતરો કર્યો કે અહીંની જે સમસ્યા છે કે સનેડોના ઝાડમાં શીખી શકાય એનો પ્રયત્ન કર્યો. श्रोता मित्रों प्लीज अपना म्यूट करिए प्लीज। संयोजन કાર્બનિક સંજ્ઞાથી કેસરબેન જો વેબિનારમાં
આ રીતે શનિવારે મેં ગીત તૈયાર કર્યું અને ગીતનો પ્રભાવ એટલો બધો પડ્યો કે જયારે શનિવારે કેવો ટાઈમ મળે તો હું સનેડો ગવડાવું તો 1 થી 5 ના બાળકોને પણ તત્વોની સંજ્ઞા આવી ગઈ છે. આજ સનેડો મેં ઇનોવેશનમાં મૂક્યો તો છેક રાજ્ય કક્ષા સુધી પહોંચ્યો છે. બીજું કે જે રાસ છે એ રાસને મેં એવું વિચાર્યું કે આપણી જે અભ્યાસક્રમમાં એકમો આવે છે એમાંથી જો પસંદ કરી બાળકોને રાસ શીખવવામાં આવે તો પણ સારું કહેવાય. તો એ આધારે મેં ધોરણ 5 ની જે હિંડોળો કાવ્ય છે એ હિંડોળો કાવ્યને મેં રાસ સ્વરૂપે શીખવ્યું અને એ રાસ છેક અમે રાજ્ય કક્ષા સુધી લઈ ગયા અને એ જ રીતે બાળકોને જે કવિતામાં કેટલાક એવા છે કે આપણે હાવભાવ સાથે કહી શકીએ એ બાળકો સંસ્કૃતિમાં ગરબા છે, નાટક છે અને લોકનૃત્ય દ્વારા બાળકો શીખી શકે એ માટેનો પ્રયાસ કર્યો છે. દર વર્ષે અમે રમતગમત અધિકારીની કચેરી દ્વારા જે કાર્યક્રમો કરવામાં આવે છે એમાં બાલ પ્રતિભા સ્ત્રોત અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમમાં અમે નાટક, લોકનૃત્ય અને ગરબો, રાસ બધું જ અમે બાળકોને શીખવાડે છે. અને એ પણ જે અભ્યાસક્રમના જે ભાગ છે અભ્યાસક્રમમાંથી જ અમે પસંદ કરીએ છીએ અને એમાંથી બાળકોને ખૂબ સારો એવો લાભ થયો છે અને બાળકો નાચતા, ગાતા, નાટક કરતા છે ખૂબ સારી રીતે શીખી શકે છે. મને ગાવાનો બહુ શોખ હોવાથી હું નવા બાળ ગીતો ગવડાવી અને બાળકોને અવનવું શીખું છું. જેમ કે જયારે પ્રવેશોત્સવ હોય ત્યારે બાળકોને મેં કહું કે નિશાળે ઘંટો વાગ્યો, નિશાળે દોડી જઈશું, નિશાળે દોડી જઈશું, હાથમાં પાટી લઈને હું તો નિશાળે ભણવા જઈશું, નિશાળે ભણવા જઈશું, એકડો લખજે ને બગડો લખી દેજે ને બગડો લખી દેજે. આવા કેટલાક ગીતો છે જેવા કે ભણવા મારે જાઉં બેનિયા, દાદાજી રે દાદાજી, નિશાળમાં રમત રમાડે બેનિયા, દાદાજી રે દાદાજી. આવા ઘણા બધા ગીતો ગવડાવી અને બાળકોને અહીંની સંસ્કૃતિની ભાષામાં અમે લોકબોલીમાં જ અમે ભણાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. નાના બાળકોને લોકબોલીમાં શીખવવામાં આવે તો બાળકો ઘણું સારું એવું શીખે છે. બીજું કે અહીંયા જે અહીંની વિરાસતો છે એની સંસ્કૃતિ જળવાય અને બાળકોને સંસ્કૃતિનું જ્ઞાન મળે એ હેતુથી અમારે અહીંયા છોટાઉદેપુરમાં જ એક આદિવાસી એકેડેમી આવેલી છે, ભાષા કેન્દ્ર. ત્યાં બાળકોને દર વર્ષે લઈ જાય છે. ત્યાં અહીંની જે સંસ્કૃતિ છે આખા ભારતની સંસ્કૃતિનું ત્યાં પ્રદર્શન ગોઠવે છે. એ પ્રદર્શન અમે બતાવે છે, અહીંની કલ્ચર છે, વાદ્ય એ બધું જ અમે બાળકોને બતાવે છે. છોટાઉદેપુરમાં પણ આદિવાસી મ્યુઝિયમ છે, ત્યાં પણ અમે બાળકોને લઈ જઈએ છીએ અને એનાથી બાળકોને અહીંની જે સંસ્કૃતિ છે એમને ખ્યાલ આવે છે. આ રીતે બાળકોમાં અમે આ રીતે સંસ્કૃતિને ટકાવી રાખવા માટેનો પ્રયાસ કરે છે. અને શિક્ષણમાં જે પુતળી કલા છે પપેટ દ્વારા અમે બાળકોને ખૂબ સારી રીતે શીખવે છે. પ્રાર્થનામાં हमारे सभी जितने कलाकार मित्र हैं जो अभी आपने सुना, ખૂબ ચિરંજીવ બને છે. બાળ નાટિકા અને બાળ નૃત્ય દ્વારા काम कर रहे हैं. લઈ જાય છે. તો નાટક દ્વારા કે ગીત દ્વારા કે નૃત્ય દ્વારા કે રાસ ગરબા દ્વારા જો બાળકોને શિક્ષણ આપવામાં આવે તો આપણી સંસ્કૃતિની સાથે બાળકો પૂરેપૂરું જ્ઞાન પણ મેળવી શકે છે અને ખૂબ સારું એવું જ્ઞાન મેળવી શકે છે. થેન્ક યુ વેરી મચ કેશરીભાઈ. હવે આપણી પાસે થોડોક ટાઈમ બાકી છે એટલા માટે જે આપણે કલ્ચર રૂમ છે કે કલ્ચર રિસોર્સ રૂમ છે થોડા बतावा मांगू છું કેશરીભાઈ. બહુ સરસ તમે सर आप साथ साथ में सर दिख रहा है क्या सर? वहाँ पे दिख रहा है क्या सेवक भाई? आप देख पा रहे हैं? कल्चर रिसोर्स रूम का थोड़ा मैं झांकी बताना चाहूंगी. हाँ मैडम दिखाई दे रहा है. हाँ मैडम दिखाई दे रहा है. हाँ दिखाई दे रहा है मैडम. अलग अलग राज्यों का पोशाक रखा हुआ है. इस तरफ देखिए तो हस्तकला द्वारा निर्माण किया हुआ है पूरा. ग्लास पेंटिंग है, ये भी हस्तकला का ही नमूना है. आप देखेंगे तो इधर सभी जगह शुरुआत से लेकर आज तक की बिल्डिंग का बनाने का बच्चों ने प्रयास किया है और आगे जाएंगे तो छोटाउदेपुर का कल्चर पूरा रखा हुआ है. धर्मनिरपेक्षता की बात छोटाउदेपुर कल्चर के विषय में यहाँ पे बताया गया है. धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो पूरा यहाँ पे प्रदर्शन लगाया गया है, इसके बारे में भी बताया जाता है बच्चों को.
आप आगे भी जाएंगे तो पूरा यहाँ से अलग अलग देखेंगे, देखने को मिलेगा। जो पुराना बॉक्स सारा बोलते हैं वो भी है। यहाँ पे कठपुतली नृत्य के लिए, पपेट शो के लिए अलग अलग शो कर सकते हैं। वार्ता पपेट शो द्वारा, कठपुतली नृत्य द्वारा वो स्टेज के लिए निर्माण किया गया। आपको मैंने पहले बारहवीं और पेंटिंग का उदाहरण तो दिया ही। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग जुड़े हमारे साथ, और अगली बार हम फिर से, ये तो शुरुआत है हमारी, पुनः जुड़ते रहेंगे हमारे साथ। आज जो महानुभाव जुड़े, जोशी सर, प्राचार्य मैडम, चेतन सर और केसरी भाई, ललित सर और सेवक भाई, सभी को खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ऑल पार्ट। थैंक यू वेरी मच नीलम जी, थैंक यू वेरी मच मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच आप सबको। आप सबके बिना, जो श्रोता मित्र के बिना भी ये संभव नहीं था। हम पुनः जुड़ेंगे। अभी सेकंड है कल्चर का, फिर से एक के बाद एक होता रहेगा। हम राष्ट्र से अंतर्राष्ट्र तक जाएंगे और वहाँ का भी कल्चर जानेंगे। वहाँ का भी शुरुआत घर से हुई है। जी सर, शुरुआत है और शुरुआत को आगे तक ले जाएंगे। जी थैंक यू वेरी मच सर, आपके आशीर्वाद से होगा सर। जी सर्टिफिकेट 4-5 दिन में सभी को मिल जाएगा सर्टिफिकेट्स। और जब अभी अगला प्रोग्राम भी होगा कल्चर का, एक के बाद एक रखा जाएगा। और हमारे बहुत सारे कलाकार हैं हमारे बड़ौदा में, तो एक के बाद एक जुड़ना चाहेंगे। और मैं यही गुजारिश करती हूँ सबसे कि जैसे आज आपने बहुत अच्छा अभिप्राय दिया, बहुत अच्छी तरह से जुड़े, इतने सारे रिस्पॉन्स मिले, आगे भी प्रयास करूंगी कि आप हमारे हर कार्यक्रम में जुड़ते रहें। मैडम को कुछ बोलना हो तो प्लीज, मैडम को कुछ सर आपका और ललित सर और चेतन सिंह सर, आपका मैं खास रूप से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपके आने से और हमारा जो ये वेबिनार है और भी ज्यादा मजेदार बना। और हमारे जो मित्र उसमें जुड़े हुए हैं उन सभी को मैंने उन लोगों का रिस्पॉन्स भी देखा, रिव्यू भी देखा, तो वो बहुत सभी लोगों को पसंद है। तो आप सभी का मैं भी मेरी ओर से, मेरे डाइट परिवार की ओर से, माननीय जोशी साहब का भी और आपका भी करूंगी। और दूसरा भी हम ऐसा वेबिनार आगे करने वाले हैं। मैं आशा रखती हूँ कि आप उसमें भी हमारे साथ ज्वाइन होंगे और आपका जो ज्ञान है वो हम सब में शेयर करेंगे। धन्यवाद। जरूर मैडम, बहुत अच्छा प्रयास है। सभी महानुभाव, सभी श्रोता मित्रों, थैंक यू वेरी मच टू ऑल। अगला वेबिनार फिर जल्दी ही हम सब मिलेंगे और फिर से आपका रिस्पॉन्स मिलेगा, ये मैं अपेक्षा रखती हूँ और सबको वंदन करती हूँ। अगला पूरा एक थीम के ऊपर हम जाएंगे और मिलेंगे। अगले सर का मार्गदर्शन रहेगा। अभिनंदन मैडम, मैडम का प्रोत्साहन तो है ही। हम फिर जल्दी मिलेंगे। आप, मेरी रिक्वेस्ट है कि फीडबैक फॉर्म प्लीज भर के भेज दीजिएगा, तो हमें पता चले, सजेशन मिलेगा तो मैं आगे कुछ और अच्छा कर सकूंगी। रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फीडबैक फॉर्म भर के प्लीज भेज दीजिएगा प्लीज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टू ऑल। नमस्कार। राइट, फीडबैक फॉर्म मैडम का फोन आया करता था। ओके, डन।